Good morning, guys. Welcome to Study More. Today, as we have, you all know that we have started our pharmacology series, and it's going very well. So, where we have uploaded around six to seven videos, 6 to 7 lectures of on pharmacology. Now, I think I should be making videos on general microbiology also. So, we'll start with general microbiology today. Okay, so do check on Study More and do subscribe to this channel for your all medical study. Okay, we are going to complete each and every subject, don't worry guys, so just stick with our channel. Each and every subject we are going to complete. Okay guys, so let's start with definition of general microbiology. This micro means what? Microorganism. Okay, microorganism. Logy means what? Study of. So it is the study of microorganism. Okay, so it is the study of general properties of microorganism. What are they? Means bacterial morphology, study what we study in that. Bacterial morphology, sterilization, its techniques and all. Disinfections, how do we disinfect. Okay, देन कल्चरल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स कौन से होते हैं, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे. एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स, सो एक्सेट्रा. So all these things we study. So this is what a definition says. What its definition? Now in one line, it is the study of general properties of microorganism such as bacterial morphology, sterilization, disinfection, cultural identification method, and bacterial genetics. Okay guys, so I hope you all have understood. तो समझ में आ रहा है आप सबको? सो लेट्स गो फर्दर. सो ना अब हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है. राइट, जनरल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देख ली, अब हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है. राइट, जो विच डील्स विथ microorganism, which deals with study of microorganism. Okay, और उनका रोल एंड देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में. ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज़ के अंदर उनका रोल क्या है, ये स्टडी करता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल माइक्रोलॉजी. फिर से, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन. what it is the branch of medicine, it studies microorganism और उनका रोल and their role in the human health and disease. Okay, this is what medical microbiology deals with. Okay, but एक थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और डिटेल में जाएंगे तो हमको पता चलेगा. इट आल्सो कंसर्न, इसका मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. सो इसका मतलब दिस आल्सो deals with diagnosis. Okay, this also deals with diagnosis, this also deals with treatment, and this also deals with prevention of various infectious disease. सो इसका मतलब क्या हुआ, जनरल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और उनका रोल क्या है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के अंदर. राइट, अगर डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे तो उसके बाद हम और डिटेल में अगर जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि हम ये भी पढ़ रहे हैं कि डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी डायग्नोसिस, वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रीटमेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द how we prevent the various infectious diseases to occur. Okay, so this is what medical microbiology says. So there are
four types of microorganism. So now how many microorganism cause disease, right? How many microorganism cause disease? There are four. First is bacteria. Okay. Second is fungi, fungi, आप जो बोलना है बोल सकते हो. पैरासाइट, and fourth one is viruses. Okay, so in medical microbiology we are going to deal with all these four. Okay, so उसके basis के ऊपर we have lot of branches of medical microbiology. What are all the branches we are going to study in this year, in this book? Very firstly, what we have started is general microbiology. General microbiology. Okay, second one, immunology. Then third one, bacteriology. Okay, fourth one, virology. Fifth one, mycology. Sixth one, parasitology. Where should I write? Can I write here? Parasitology. So how many is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so these 6, we have divided this book in these 6 sections. Okay, so we are first starting with this general microbiology. Okay, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे टुडे दैट इसकी पहले तो हिस्ट्री वगैरह देख लेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट क्या क्या उन्होंने किया है, किसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, किसको एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हम देख लेंगे. दिस इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर आवर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. ओके गाइज, सो लेट्स गो. यहाँ तक पता चला. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हम बुक पढ़ रहे हैं. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देख ली हमने. उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और उनका रोल ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में क्या है वो देखेंगे. उसके बाद हम उसके 4 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरस, राइट. सो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उसको डिवाइड किया है 6 सेक्शन में. एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी, देन इम्यूनोलॉजी, देन बैक्टीरियोलॉजी, देन वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस बुक इन दिस फॉर्मेट. ओके गाइज, सो जनरल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन हमारी हो गई है. अब चलते हैं आगे. हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो महावीरा के अंदर जैनिज़्म होता है. सो इन जैनिज़्म कौन से सेंचुरी में था? 6th सेंचुरी BC, राइट. 6th सेंचुरी BC में था. वहाँ पर तुमको इसका उल्लेख पता चलेगा, एक्चुअल डिस्कवरीज इसको इसके अंदर बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है. सो एग्जिस्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज एग्जिस्टेंस के बारे में इस समय बताया गया है. सो एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, उसके बाद कुछ पॉस्टुलेट्स किए गए. उसके अंदर पता चलता है कि वारो और कॉलमनेला जो थे उन्होंने बताया है कि जो माइन्यूट, जो नॉन विजिबल ऑर्गेनिज्म है, उनको उसने नाम दिया माइन्यूट एनिमेलिया माइनूटा. क्या नाम दिया उन्होंने? एनिमेलिया माइनूटा. ओके गाइज,
सो सबसे पहले ये नाम आया जो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं है उसके लिए, दिस वॉज द पॉस्टुलेशन। ओके, देन कम्स द एडवर्ड जेनर। दिस एडवर्ड जेनर, ओके, दिस एडवर्ड जेनर is the main person, or he is the one who first developed a vaccine. Okay, he is the one who first developed a vaccine. So against what? He developed a vaccine against smallpox. What he did, he took a what he took virus from he took virus from cow. Okay, he took virus from cow. So this virus is called cowpox. So it what this virus मेक अ डिजीज़, और ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस काऊ में काउपॉक्स डेवलप करते हैं, काउपॉक्स वायरस, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, काउपॉक्स वायरस। सो इसका नाम क्या था, वेरियोले, वेरियोले वैक्सीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, वेरियोले वैक्सीन है। ओके, सो ये नाम था। सो इसने क्या किया, इस काऊ से दिस काउपॉक्स वायरस को आइडेंटिफाई किया, मतलब वेरियोले वैक्सीन को आइडेंटिफाई किया, और उसको वो एडमिनिस्टर किया चिल्ड्रंस में, वो एडमिनिस्टर किया चिल्ड्रंस में टू ट्रीट स्मॉल पॉक्स, सॉरी टू गेट वैक्सीनेटेड, सॉरी टू प्रिवेंट causing smallpox in children, right? So इसका जो ये वर्ड वैक्सीन है, वैक्सीने है, इसी से इसके बाद से ही द वर्ड वैक्सीन केम। ओके, द वर्ड वैक्सीन केम फ्रॉम द वेरियोले वैक्सीन आफ्टर व्हाट, द एडवर्ड जेनर। ओके, एडवर्ड जेनर ने जब यूज़ किया तब। सो आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट, फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया, चिल्ड्रन में दे दिया उसने काउपॉक्स वायरस से आइडेंटिफाई निकाल के। सो उसका नाम था वेरियोले वैक्सीन। ओके, सो फ्रॉम देम ओनली द टर्म वैक्सीन हैज़ अराइव्ड। ओके, और अभी भी सेम यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट कम इज़ द लुइस पाश्चर। सो लुइस पाश्चर ही इज़ द बिग मैन। ओके गाइज, सो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। सो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, सो आपने को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। सो ही लिव फ्रॉम 1822 टू 1895। सो ये फ्रांस में रहते थे भाई, ये फ्रांस में ही वॉज अ फादर, सॉरी ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ अ केमिस्ट्री। ओके, व्हाट ही यूज़ टू स्टडी केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले, इनका इंटरेस्ट कैसे आया, इन्होंने फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट किया, फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट किया। इनको पता चला कि ये फर्मेंटेशन किससे होता है, इसके लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो उसके बाद इनको पहले और पता चला कि फर्मेंटेशन सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म से नहीं होता। सो इनको पता चला देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व। ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट है वहाँ पर, राइट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सो इसके वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इनके ये वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके गाइज, सो इन्होंने बहुत कुछ किया है, देखते हैं आगे एक एक करके। सो वेरी इंपॉर्टेंटली ही देन आगे चल के इन्होंने एक टेक्निक निकाली जिनको बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो दिस कंट्रीब्यूशन इज इन डेवलपमेंट ऑफ मेथड, दूसरे से लिखता हूँ, डेवलपमेंट
of method and techniques of bacteriology. Okay guys, so okay, सो व्हाट ही डिड, ये फर्मेंटेशन को तो समझा। फर्मेंटेशन किसके लिए करते हैं हम? फर्मेंटेशन इज प्रिजर्वेशन, इससे वो क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके गाइस, देन ही गेव द स्टरलाइजेशन टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टरिलाइजेशन, स्टरिलाइजेशन टेक्निक। ओके, और भी इन्होंने बहुत आगे चल के और किस कैसे कैसे स्टरलाइज करते हुए बताया है। स्टीम स्टरलाइज़र बताया इसने। किससे करेंगे स्टरलाइज? स्टीम स्टरलाइज, स्टीमर से, हॉट स्टीम आते हैं ना, स्टीम स्टरलाइज़र, स्टीम स्टरलाइज़र, स्टीम स्टरलाइज़र। देन उन्होंने बताया हॉट एयर ओवन, देन उन्होंने बताया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव अब भी, ये सारा चीज़ आज भी यूज़ होता है। ओके गाइस, सो ऑटोक्लेव ये हॉस्पिटल में यूज़ होता है। सो ऑटोक्लेव ये बताया। देन ही गेव पास्चराइजेशन। सो यहाँ पर देखिए व्हाट ही गिव, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन एक, दूसरा ही गेव डेवलपमेंट मेथड्स एंड द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन थर्ड ही गेव स्टरलाइजेशन टेक्निक, ये तीन चीज़ों से। देन फोर्थ व्हाट ही गेव, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैसे होता है, पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। Okay, he then gave the pasteurization of milk. In pasteurization of milk, what they do, they treat the raw milk to particular temperature. Why? To kill the harmful bacteria from the milk, in the raw milk. Okay, समझ में आया? वो क्या करते हैं इसके अंदर, रॉ मिल्क लेते हैं, मतलब कच्चा दूध लेते हैं, वो कच्चे दूध को वो गर्म करते हैं अप टू सम टेम्परेचर, उसके बाद उसके अंदर का हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाता है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मिल्क इज़ माइक्रो फ्री, राइट। सो आप उसको बिना गर्म किए, पास्चराइज मिल्क जो भी होता है उसको आप बिना गर्म किए पी सकते हो। सो ये किसने बताया था? ये पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की थ्योरी किसने बताई? ये बताई ही मेथड किसने बताया है? लुइस पास्चर ने। Okay guys, so that's why this Pasteur word is from his name, लुइस पास्चर। सो ये तो कभी हमसे कोई गलत नहीं होगा आपका, राइट। सो आगे चलते हैं। सो आगे इन्होंने बताया है वैक्सीन के बारे में भी। सो ही हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन वैक्सीन। ओके, गिवन हिज कंट्रीब्यूशन इन वैक्सीन, फिफ्थ पॉइंट, दैट एंथ्रैक्स वैक्सीन के बारे में बताया इन्होंने, राइट। फॉल कॉलेरा और रेबीज़ वैक्सीन के बारे में बताया। ओके, सो वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट, वैक्सीन अगेंस्ट which disease? Anthrax, fall cholera, and rabies vaccine. These three vaccines, against these three vaccines के बारे में उन्होंने बताया. So he contributed with this. Okay, then he sixth he gave germ theory. Germ theory of disease. Germ theory of disease. What he told in that? So what he told that disease is not going to form by only bad air or vapor. Okay,
डिजीज ऐसे ही हवा से नहीं होता है, not caused by disease is not, he don't approve the postulates that the bad air or vapor, okay, bad air or vapor does not cause, bad air or vapor does not cause the disease, cause the disease, okay. So but he isolated, he said, what he said there should be an microorganism in there, there should be an microorganism present in air which cause, which will cause a disease, ओके गाइज। सो ये थी जर्म थ्योरी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, राइट। सो दिस वैक्सीन क्या क्या किया उन्होंने, सो ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स बनाया उन्होंने। व्हाट इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स मीन्स, live vaccine, he developed a live vaccine, okay. This experiment of him that was accidental, this is what accidentally he found, okay, accidentally dental, accidentally he observed or found that चिकन कोलोरा बैसिलस जो थे कल्चर के लिए लेफ्ट कर दिए थे, चिकन कॉलरा बैसिलाई बैसिलस जो थे, जो कुछ वीक्स तक उन्होंने वैसे ही रखे थे, ठीक है, किसके लिए, कल्चर करना था उसको, कल्चर के लिए, ओके। सो ही लेफ्ट इट फॉर several weeks, okay. Then he observed that this after several weeks, he observed that after several weeks this bacilli has lost its pathogenicity, he lost its pathogenicity means what, ये जो चिकन कोलेरा बैसिला है ये अब डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, राइट। बट डिजीज़ प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये चिकन कोलेरा बैसिला है, इसके अंदर एक एबिलिटी है कि जो बर्ड्स को उस डिजीज़ या उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने की, ओके। सो बट इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, has the ability to protect a bird to get infected, bird from the infection, or ability to protect a bird from the disease, okay. so इसके वजह से एक कंसेप्ट आई, उसको क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव attenuated vaccine. So this concept came from here, okay. So he did that this attenuation he did in anthrax bacillus, okay. So same experiment he did in anthrax bacillus, okay. Yeah, come on, come down, okay. So what he did, attenuated
he started attenuate anthrax bacillus. एंथ्रैक्स बैसिला कौन से टेम्परेचर तक 42 to 43 degree centigrade. Okay, so this inoculation, this is called inoculation. तो उन्होंने क्या फाइंड किया? So this inoculation proved that this bacilli in animal induce a protection. What it do? It induce a protection against anthrax. So he proved that. He proved. ओके, सो उसने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, इसने ये सब सारा कैसे प्रोवाइड किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया एंथ्रैक्स वैक्सीन का, पब्लिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, राइट. सो पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया उसने एक इन 1881. ओके, उसने क्या किया, शीप, व्हाट ही डिड इन शीप, गोट्स और काऊ, राइट, इनके अंदर इसने इनोक्यूलेटेड मीन्स एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंथ्रैक्स के जो वैक्सीन है वो उसने इनके अंदर पुश किया, एटेन्यूएटेड, लाइव एटेन्यूएटेड. ओके, इसके अंदर इनको दिया, राइट, और सेम नंबर को नहीं दिया, सेम नंबर नॉट गिवन to same number of animal. ओके, राइट. सो जो इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या आया? द रिजल्ट सेज जितने भी एनिमल है जिनको इसने वैक्सीन दिया, जितने भी दी, all those animals who was vaccinated with anthrax attenuated anthrax, live attenuated anthrax bacilli survive, and those who didn't got the vaccine died with the disease, so the equal number, so अनवैक्सीनेटेड जो एनिमल थे वो डाइड हो गए, जो वैक्सीनेटेड एनिमल्स थे वो सर्वाइव रहे, राइट. सो पाश्चर देन coined the term vaccine. ओके, फॉर सच प्रोफिलैक्टिक प्रिपरेशन. सो एक प्रोफिलैक्टिक प्रिपरेशन के लिए पाश्चर ने किसको नाम दिया? प्रोफिलैक्टिक प्रिपरेशन के, ओके, वैक्सीन नाम दिया. ओके, सो जो कि काउपॉक्स एम्प्लॉय जेनर में है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स रहता है, वो सेम वैसे ही इसने ये टर्म कॉइन किया. ओके गाइज, सो दिस वाज अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो विल स्टॉप हियर and we'll study about other Joseph Lister is remaining. Okay guys, Joseph Lister is remaining and 2-3 more scientists are remaining, so we will see that in
नेक्स्ट लेक्चर. ओके. सो आई होप पहले इतना याद रखना, इतना रट लो कैसे भी करके, ये याद करो. सो दिस मल्टीपल टेक्स्ट बुक से बनाया ये मैंने. सो डू read all these things. Okay guys, so guys, subscribe to study more. सो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो स्टडी मोर. जिन्होंने आपने सब्सक्राइब किया है, सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल. एंड जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ये ऐसे बेहतरीन वीडियोस और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें, ऐसे लेक्चर्स मिलते रहे. डोंट वरी. और जो भी रियली पढ़ना चाहता है, रियली जिसको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टिक रहे लेक्चर्स को. हम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को टच करेंगे और सभी को साथ में लेके चलेंगे. सो जस्ट गिव मी टाइम. आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस. सो आई होप, बस मेन फोकस मेरा ये है कि इसके पीछे की हर एक जो भी मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, सो एक और एक चीज़ आपको वो याद हो जाए और आपको कंसेप्चुअली समझे, और आपको उसके बाद बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े. और मेक श्योर कि मैं ये सारे नोट्स जो भी है वो बुक्स, इंटरनेट नोट्स और एवरीथिंग, ये सारे चीज़ पढ़ कर बना रहा हूँ. राइट. सो 2-3 बुक्स और इंटरनेट वगैरह से सर्च करके अगर बनाना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज. सो दैट्स वाई दिस हाफ एन आवर वीडियो इज ऑल्सो गेटिंग मोर टाइम ऑफ माई. ओके. सो सो डू सब्सक्राइब गाइज. अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट्स या फिर मेरी मेहनत दिख रही होगी इसके पीछे, सो डू सब्सक्राइब. और आप शेयर भी करो आपके मेडिको दोस्तों के साथ, डॉक्टर्स के साथ. ओके. एंड डॉक्टर्स के साथ do shares. Don't feel bad for sharing, because everyone will get a knowledge from this. The pure idea behind this is to get, everybody should get a proper knowledge. Okay guys, thank you. Stay healthy. Good day. Goodbye.